حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ، جسے یوم نحر یا قربانی کا دن یا عید الاضحیٰ کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس دن حجاج کرام ایک ساتھ کئی بڑے مناسک ادا کرتے ہیں۔ یہ دن حجاج کے لیے بہت مصروف اور برکت والا ہوتا ہے کیونکہ اس ایک ہی دن میں حج کے سب سے اہم فرض اور واجب اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ذی الحجہ کے ان 6 سب سے اہم اور بڑے اعمال کی پوری تفصیل اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں گے جو ہر حاجی کو ترتیب کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی چینل علم کا خزانہ۔ 10 ذی الحجہ یعنی یوم نحر کے 6 اہم ترین کام یہ ہیں۔ نمبر 1، وقوف مزدلفہ، جو حج کا پہلا واجب ہے۔ نوٹ کر لیجئے، قیام مزدلفہ اور وقوف مزدلفہ کے باریک فرق کی وضاحت بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہے۔ نمبر 2، منا روانگی۔ نمبر 3، جمرات العقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی۔ نمبر 4، حج کی قربانی یا دم شکر۔ نمبر 5، حلق یا قصر۔ نمبر 6، مکہ جا کر طواف زیارت اور سعی ادا کرنا۔ حج کا پہلا دن یعنی یوم ترویہ کی ویڈیو اگر ابھی تک نہیں دیکھی تو پہلے وہ ضرور دیکھ لیجئے، جس میں حج کے فرائض، واجبات، سنت اور مستحب اعمال کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد حج کے دوسرے دن یعنی یوم عرفات کی ویڈیو دیکھیے۔ اس کے بعد یہ حج کے تیسرا دن یعنی یوم نحر کی ویڈیو دیکھیے تاکہ تسلسل قائم رہے۔ پچھلی ویڈیوز کے نوٹ کرنے والے پوائنٹ یہ ہیں کہ عرفات کی حدود سے غروب آفتاب سے پہلے کسی صورت نہ نکلیں ورنہ دم واجب ہو جائے گا۔ عرفات کی حدود عرفات رنگ روڈ کے اندر ہے اور بسوں میں آنے والے حاجیوں کے عرفات خیمے رنگ روڈ کے اندر نزدیک ہی ہوتے ہیں، لہٰذا دوران وقوف اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ عرفات رنگ روڈ سے باہر ہرگز نہ جائیں۔ دوسرا پوائنٹ، مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں ادا کی جائیں گی۔ ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھیں، پھر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں اور اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض ادا کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد سنتیں اور نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پھر وتر پڑھیں مگر مغرب و عشاء کے فرض کے درمیان سنت یا نفل نہ پڑھیں۔ مغرب و عشاء کی نماز میں ادا کی نیت کریں، قضا کی نیت نہ کریں۔ مزدلفہ کی رات میں خود کار انتظام کے طور پر کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں، یعنی چٹائی وغیرہ کا خود سے بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ حج کا پہلا واجب وقوف مزدلفہ۔ یہاں مزدلفہ میں قیام اور مزدلفہ میں وقوف کو سمجھنے کے لیے انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ مزدلفہ میں قیام، مغرب و عشاء کے بعد مزدلفہ میں ہی ٹھہریں۔ صبح صادق تک مزدلفہ میں ٹھہرنا یعنی قیام کرنا سنت موقدہ ہے اور وقوف کا مطلب بھی ٹھہرنا ہے اور وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ مزدلفہ کے وقوف کا رکن یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں موجود ہوں اور یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ اس کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 10 ذی الحجہ کی صبح سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں قیام کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ابتدائی وقت میں ادا کریں۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر سورج طلوع ہونے تک جتنی دیر ہو سکے مزدلفہ کا وقوف کریں اور خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں۔ یہی مزدلفہ کا وقوف ہے، خواہ ایک لمحے کے لیے ہی ہو، واجب ہے۔ اس کے بعد منا کو روانہ ہو جائیں۔ صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر کے لیے وقوف کرنا واجب ہے۔ بلا عذر مزدلفہ کے وقوف کو ترک کرنے سے دم واجب ہوگا۔ مزدلفہ میں رات کا قیام سنت موقدہ ہے جبکہ وقوف مزدلفہ واجب رکن ہے اور واجب کے ترک ہونے پر دم لازم ہو جاتا ہے۔
अगर कोई शख्स सुबह सादिक के बाद अंधेरे ही में मुजदलिफा से चल दिया तो दम वाजिब नहीं होगा, क्योंकि चलते वक्त वकूफ की वाजिब मिकदार अदा हो जाती है। मुजदलिफा से मिना रवानगी। जब सूरज निकलने का वक्त करीब आ जाए तो निहायत सुकून के साथ तलबिया पढ़ते हुए मिना रवाना हो जाएं। जब वादिये मुहस्सर पर पहुंचे तो इससे तेजी से चलते हुए गुजर जाएं। वादिये मुहस्सर मुजदलिफा और मिना के दरमियान वो जगह है जहां मक्का मुकर्रमा पर हमला करने के इरादे से आने वाले अब्राहा बादशाह के लश्कर पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। ये कुछ थोड़ा सा नशेब है मुजदलिफा और मिना के दरमियान, ना मिना में है और ना मुजदलिफा में दाखिल है, दोनों के दरमियान हद फासिल है। वहां पर सऊदी हुकूमत ने निशान भी लगा दिए हैं। मिना पहुंचकर 3 अहम काम, बड़े जमरा को कंकरियां मारना, कुर्बानी करना और सर के बाल साफ करना, ये तीनों अमाल दर्जा बाला तरतीब के साथ करना वाजिब है, वरना दम लाजिम आएगा, जबकि बाज़ उलमा के नजदीक तरतीब लाजमी नहीं। रमी उकबा यानी बड़े शैतान को कंकरियां मारना। मिना पहुंचकर सबसे पहले बड़े जमरा यानी जमरा उकबा या आखिरी जमरा को 7 कंकरियां मारिए। पहले दिन मिना पहुंचने से लेकर जवाल से पहले पहले कंकरियां मारना अफजल है, अलबत्ता जवाल से गुरूब तक भी जायज है। आज 10 जिलहज्जा को सिर्फ इसी एक जमरा की रमी की जाएगी। रमी जमार का मतलब है छोटी कंकरियों का मखसूस जमाने में मखसूस जगह पर मखसूस तादाद में फेंकना। रमी जिन मुकामात पर की जाती है उनको जमरात या जमार कहते हैं और हर एक को जमरा कहते हैं। आजकल इस जगह पर सुतून बना दिए गए हैं। असल में ये सुतून जमरात नहीं है, बल्कि इनके गिरदो पेश का हिस्सा असल जमरात है जहां कंकरियां गिरनी चाहिए। जिन जमरात पर रमी की जाती है वो 3 है। जमरा उला यानी छोटा शैतान, ये मिना में मस्जिद खैफ के बाद पहला जमरा है। जमरा सानिया यानी दरमियाना शैतान, ये जमरा उला के बाद और जमरा उकबा से पहले है। जमरा उकबा यानी बड़ा शैतान, ये मिना के आखिर में मक्का की तरफ वाक़े है। जिस तरह चाहें पकड़कर कंकरियां मारें जायज है, लेकिन कंकरियों को अंगूठे और शहादत की उंगली से पकड़ना मुस्तहब है। बड़े जमरा से थोड़े फासले पर खड़े हों और 7 दफा में दाएं हाथ से 7 कंकरियां मारें। हर मर्तबा तकबीर कहना मसनून है। हर कंकरी मारते वक्त बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहें। तलबिया जो आप हज की नियत करने के बाद अब तक बराबर पढ़ते रहे, आज जमरा उकबा पर पहली कंकरी मारने के साथ तलबिया का सिलसिला मौकूफ हो जाता है। अब तलबिया बंद कर दीजिए और दूसरे अज़कार से जबान को तर रखिए, जबकि तकबीरात तशरीक 13 जिलहज्जा तक हर नमाज के बाद जारी रखें। रमी जमार हज में वाजिब है। जो शख्स बगैर किसी उज़र के रमी छोड़ देगा उस पर गुनाह और दम लाजिम आएगा, और अगर किसी शरई उज़र की बिना पर छोड़ेगा तो गुनाहगार तो ना होगा, लेकिन इससे दम साकित ना होगा। हज की कुर्बानी या दमे शुक्र, ये हज का तीसरा वाजिब है। अल्लाह ताला ने एक सफर में 2 इबादतें यानी उम्रा और हज की सादत नसीब फरमाई, जिसका शुक्रिया हज की कुर्बानी करना है, जिसका वक्त 10 जिलहज्जा से लेकर 12 जिलहज्जा के गुरूब आफ्ताब तक जिस वक्त चाहें कर सकते हैं। कुर्बानी हुदूद हरम में ही करना जरूरी है। हुदूद हरम से बाहर की जाने वाली कुर्बानी का एतबार नहीं होगा। हालांकि यहाँ कसर जो हज का चौथा वाजिब है। 10 जिलहज्जा की रमी और कुर्बानी से फारिग होकर सबसे पहले हलकिया कसर करें। हलकिया कसर का वक्त 10 जिलहज्जा को सुबह सादिक से 12 जिलहज्जा के
गुरूब तक रमी और दमे शुक्र करने के बाद है। सर के बाल हुदूद हरम में ही काटना जरूरी है। हुदूद हरम से बाहर बाल काटने से हलाल तो हो जाएंगे, लेकिन दम देना होगा। जो हजरात कुर्बानी करने के लिए किसी को वकील बनाते हैं, जब तक कुर्बानी होने का कामिल यकीन ना हो जाए उस वक्त तक सर ना मुंडवाएं। तवाफ़े ज़ियारत हज का अहम फर्ज। रमी जमरात, कुर्बानी और सर के बाल साफ करने के बाद हुज्जाज की अगली मंजिल बैतुल्लाह है, जहां वो तवाफ़े ज़ियारत अदा करेंगे। तवाफ़े ज़ियारत दर्ज झेल तरीकों से किया जा सकता है। चाहे तो गुस्ल करके सिले हुए कपड़े पहन लीजिए और तवाफ़े ज़ियारत कीजिए, चाहे तो एहराम की चादरों में ही तवाफ़े ज़ियारत कर लें। तवाफ़े ज़ियारत वकूफ़ अरफा के बाद दूसरा अहम रुकन है। तवाफ़े ज़ियारत का वक्त 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है। अगर तवाफ़े ज़ियारत 12 ज़िलहज्जा के गुरूब आफ्ताब के बाद किया गया तो तवाफ अदा हो जाएगा, मगर दम वाजिब होगा। तवाफ़े ज़ियारत का ना तो कोई बदल है और ना ये माफ है। नेज़ जब तक इसको अदा ना किया जाएगा, बीवी से खास ताल्लुकात जायज ना होंगे, तवाफ करने के बाद ही हलाल होंगे। हज की सई। तवाफ़े ज़ियारत से फारिग होकर सफ़ा मरवा की सई कीजिए। सई करना वाजिब है, लिहाजा अगर कोई शख्स इसको बिला उज़र तर्क करेगा तो इस पर दम वाजिब होगा। 10 ज़िलहज्जा के इन 6 बड़े ज़रूरी अफ़ाल और कामों को ठंडे दिमाग से सब्र के साथ अदा करें, क्योंकि आज के दिन रश बहुत ज़्यादा होता है। अगली वीडियो में हम 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा अय्यामे तशरीक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबकी रहनुमाई हो सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।